গুড মর্নিং ফ্রম উদয়পুর। ঘড়িতে প্রায় সকাল 7:30। আমরা সকালবেলা উঠে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছি চিত্তরগড়ের উদ্দেশ্যে। দেখতেই পাচ্ছ সোনালি আবহাওয়ায় চারদিকে রাস্তাটা ছোটোখাটো পাহাড়ের উপরে অরেঞ্জ শেড করেছে, দারুণ লাগছে দেখতে। আর ঘুম ঘুম চোখ, সকালবেলা এত ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, বেশ ভালো লাগছিল। উদয়পুর টু চিত্তরগড়ের ডিস্টেন্স 110 কিলোমিটার এবং আমরা আজকে আমাদের মেন গন্তব্য অ্যাকচুয়ালি হলো পুষ্কর। আর চিত্তরগড় থেকে পুষ্করের ডিস্টেন্স 223 কিলোমিটার। সো বুঝতেই পারছেন আজকে সারাদিনে আমাদের প্রায় 350 কিলোমিটার মতন জার্নি আছে। তাই অনেক সকালবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়েছি। যেতে যেতে রাস্তার ধারে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছিল, একটা শিবের মূর্তি, অনেকটা সিমলায় ঝাকুর টেম্পলের মতন, যদিও সেখানে বজরংবলীর মূর্তি আছে। অলরেডি দূরে ওই চিত্তরগড় ফোর্ট দেখাই যাচ্ছে। আমরা পৌঁছেও গেছি এবং ওখান থেকে অটো বুক করে আমরা ফোর্টের উদ্দেশ্যে রওনাও দিয়ে দিয়েছি। ফোর্টের এন্ট্রি ফি মাথা পিছু 40 রুপিস করে। এই চিত্তরগড় দুর্গটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত তার ঐতিহাসিক নানান দুঃসাহসিক ঘটনাবলীর জন্য। এটি আরাবল্লী পর্বতের 700 বর্গ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। আর এটি এশিয়ার সবথেকে বৃহত্তম দুর্গ। সেই আমলে মেওয়ারদের রাজধানী ছিল এই চিত্তরগড়। আর রাজপুতদের এই দুর্গ নিয়ে অনেক গর্ব ছিল। কিন্তু 1303 খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজি এই দুর্গের দখল করে নেয় আর শুরু হয় এক ভয়ানক যুদ্ধ। मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस किले की नींव रखी गई है। 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक मौर्य वंशी राजाओं ने राज किया। 8वीं शताब्दी में बब्बा रावल जो सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, उन्होंने मौर्य वंशी राजाओं को मार भगाया और अपना राजपाट शुरू किया। 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक गहलोत वंश, सिसोदिया वंश, चुंडा वंश, परमार्थ वंश आदि ने राज किया। ये किला समुद्र গাইডের থেকে সমস্ত ডিটেলসটা জানতে জানতে তারপরে আমরা ঢুকে পড়লাম এই কেলার আরেকটি দিকে, যেখানে রয়েছে এই জহর কুণ্ড। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এই জহর কুণ্ড, যেখানে পদ্মাবতী রানী জহরের আয়োজন করেছিল। নানান স্থাপত্য নিদর্শন তখনকার দিনে সত্যি খুব অনেক সুন্দর ছিল। এটা ছিল বিজয় স্তম্ভ, যেখানে রাজা যুদ্ধের পর এই বিজয় পতাকা উড়াতেন এই স্তম্ভের সামনে। ভেতরে গ্রাউন্ডটা সত্যি খুব সুন্দর, যদিও এখন নানা রকম মেনটেনেন্সের মধ্যে দিয়ে চলছে। दोनों पे विजय प्राप्त करने की खुशी में इस स्तंभ का निर्माण किया गया। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिल में बना है, नीचे से लेके ऊपर तक। এটি হলো কেলার ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত একটি জলস্থান, যেখানে তখনকার দিনের নারীরা ব্রহ্মাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে এই জলকে ব্রহ্মাদেবের রূপে পূজিত করতো অ্যাকচুয়ালি। আর এটা হলো ফোর্ট থেকে বাইরের নিদর্শন, খুব সুন্দর লাগছে, পুরো সিটিটার ভিউ আসছে। হ্যাঁ, আর এটা হলো মন্দির। তখনকার দিনে যেসব মন্দিরে শিবের মন্দিরই ম্যাক্সিমাম ছিল। আর এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই রাস্তা দিয়ে তখনকার দিনে হাতি আসা যাওয়া করতো। আর দূরের পুরো ব্যাটেল ফিল্ড যেটা দেখছেন, এখানেই আলাউদ্দিন খলজি পুরো এরিয়াটাকে দখল করে আক্রমণ করেছিল। এখন আমরা এন্টার করতে চলেছি পদ্মাবতী মহলে। রানী পদ্মাবতীর এই মহলটি ছিল তার খুবই প্রিয় এবং সেখানে তার নানান সখীগণদের নিয়ে তার মহলে সে থাকতেন। এটা হলো সিঙ্গার মহল, যেখান থেকে রানী পদ্মাবতীর সিঙ্গার করা হতো। যদিও এর কোনো ছাদ উপরে আপনি দেখতে পারবেন না, কারণ যখন আলাউদ্দিন খলজি গিয়েছেন পুরোটাই ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছেন। সেই ধ্বংসাবশেষই আমরা দেখতে পাচ্ছি। 1903 में यहाँ का एक राज पुरोहित था चेतन राघव, जिसे अपमानित करके यहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी बहुत सुंदर है, जब पानी पीती है तो उसके गले से उतरता हुआ नजर आता है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रफल के बारे में बखान करता है तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आता है। यहाँ के राजा रतन सिंह से बोलता है कि हमने आपकी वाइफ की बहुत तारीफ सुना है, हम एक बार उनकी शकल देखना चाहते हैं। तो यहाँ के राजा रतन सिंह मना करते थे, बोलते हैं कि हम राजपूत हैं और हमारी वाइफ की शकल किसी गैर मत को नहीं करते। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज होकर दिल्ली से अपनी सेना को बुलाता है
और इस किले को नीचे से चारों ओर से घेर लिया जाता है। 6 महीने 10 दिन तक किला घेरा हुआ रहता है। यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था आसपास के गांव से की जाती थी। जब खाने पीने की व्यवस्था कम हो गई तो राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। अलाउद्दीन खिलजी को नीचे से ऊपर बुलाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध, ताकि कोई रास्ता ना जाने, और उन्हें कहते हैं कि हम आपको हमारी वाइफ की शक्ल दिखाएंगे, मगर हमारी एक शर्त है, हम आपको फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, प्रतिबिंब दिखाएंगे। इधर एक रूम बना हुआ है, रूम के अंदर में एक आईने को इस तरीके से सेट किया 90 डिग्री पे। कोई इंसान अगर जल पैलेस की सीढ़ियों पे खड़ा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखेगा। अलाउद्दीन को आईने के सामने खड़ा कर दिया जाता है। कहते हैं कि अगर आप गर्दन पलटते हैं तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का शक्ल उस आईने में देखता है, उसकी सुंदरता को देख के दीवाना हो जाता है। राजा के साथ चीटिंग करता है, बोलता है कि हम आपके मेहमान हैं, आप हमें हमारे स्थान पे छोड़ के आइए। जब राजा रतन सिंह उन्हें नीचे छोड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और रानी पद्मिनी को लेटर लिख के भेजते हैं कि आप हमारे साथ दिल्ली चलोगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे, अन्यथा हम इन्हें मार देंगे। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी चालाक उचार थी। लेटर का जवाब लेटर में लिख के कहती है कि हम आपके पास आएंगे, मगर हमारी एक शर्त है, हम हमारे 700 दासियों के साथ रहेंगे। आप 700 दासियों की बैठने की व्यवस्था कीजिए। नीचे से 700 पालकी आती है रानी पद्मिनी को लेने के लिए। उस समय यहाँ के सेनापति थे गोरा और उनका पुत्र था बादल, जो पद्मिनी के चचेरे भाई और चाचा हुआ करते थे। उन्होंने एक योजना बनाई कि लेडीज मेल्स में जेंट्स लोगों को नीचे भेजा जाए। इतिहास में लिखा है कि उन 700 पालकियों के साथ में करीबन 16,000 सैनिक लोग युद्ध भूमि में जाते हैं। युद्ध भूमि में जाके अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि रानी पद्मिनी अपने हस्बैंड से आखिरी बार मिलना चाहती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को डाउट होता है तो पालकियां चेक करता है। पालकियों में से यहाँ की रानियां नजर नहीं आती, बल्कि यहाँ के सोल्जर्स नजर आते हैं। तो फाइट होता है। फाइट में यहाँ के राजपूत राजा वीर गति को प्राप्त होता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस समय 1.5 लाख की सेना लेके आए। तो रानी पद्मिनी के पास संदेश आता है कि आपके राजपूत राजा नहीं रहे। तो रानी पद्मिनी कहती है जब हमारे राजपूत राजा नहीं रहे तो हमें जीत क्या करना। तो रानी पद्मिनी सभी रानियों को दासियों को इकट्ठा करती है, एक एक करके 16,000 रानियां दासियां। विजय स्तंभ के पास में हमने जौहर स्थल देखा, वहां अग्निकुंड जला के जौहर कर देखे। अलाउद्दीन खिलजी नीचे से ऊपर आता है रानी पद्मिनी को ढूंढने तो उसे पता चलता है कि रानी पद्मिनी तो जल के राख हो गई। तो गुस्सा आने के कारण इस किले पे जितने भी मंदिर थे, महल थे, स्मारक थे, सबको डैमेज कर देता है। उस समय इस किले के अंदर में 113 मंदिर थे, 84 तालाब कुंड थे, 16 महल थे। सबको खंडित करके दिल्ली चला जाता है। दिल्ली से अपने पुत्र खिजर खान को यहाँ का उत्तराधारी बना दिया जाता है। खिजर खान चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज कर देता है। 10 साल तक चित्तौड़गढ़ खिजराबाद के नाम से बना। ये जो रूम देख रहे हैं आप लोग प्रेजेंट टाइम में, ये रानी पद्मिनी की जो मेन दासियां हुआ करती थी उनकी रूम थी। जब रानी पद्मिनी इधर से निकलती थी तो उनकी दासियां यहाँ खड़े उठ के उन पे फूल छिड़का करती थी, स्वागत किया करती थी। अभी हम लोग आईने वाला रूम देखने जाएंगे। আমরা সেই রুমটায় পৌঁছে গিয়েছি যেখানে আয়নার মাধ্যমে রানী পদ্মাবতের প্রতিফলক দেখেছিল আলাউদ্দিন খলজি। আর এই হলো সেই জল প্যালেস যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তারপরে আমরা ওখান থেকে লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়লাম আবার পুষ্করের উদ্দেশ্যে। আমার তো এরকম হিস্টোরিক্যাল প্লেসগুলো ঘুরতে দারুণ লাগে। আপনারাও কারা কারা এই এরকম হিস্টোরিক্যাল প্লেসে ঘুরতে এবং এই হিস্ট্রিগুলো জানতে পছন্দ করেন প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনাদের একটা লাইক অ্যান্ড কমেন্টস আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করবে আমার এই ইউটিউব ক্যারিয়ারের দিকে। তাই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড কমেন্টস করতে ভুলবেন না। গুড নাইট, বাই বাই। আমরা পৌঁছে গেলাম পুষ্করে।